Hello, guys, how are you? I welcome you to the academy, and you perhaps realize the importance of newspaper and news analysis for your APSC and UPSC एग्ज़ाम प्रिपरेशन. सो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे डेली वाइज द हिंदू पेपर और अदर न्यूज़पेपर्स के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्ज़ाम. सो today, let's discuss the Da Hindu newspaper, the important news, obviously. And I would like to request you to go into details. Obviously, we will be on daily basis. Daily, I will be posting videos on news analysis with some background information so that you can have the knowledge about that. So let's start with the Hindu today. So today is 18th August. So we got this newspaper here, and the most important news about the Prime Minister Modi's visit to भूटान. सो यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ ऐसे भी होंगे जो कि आपका डेली बॉल बाय बॉल अप टू डेट होते रहते हैं, जैसे कि ये आर्टिकल 370 को लेके पिछले काफ़ी दिनों से न्यूज़पेपर में अपडेट्स आ रहे हैं. So definitely there is important various aspects of Article 370 and also the other special provisions according to 371. So if you want me to discuss about the special article, please comment in the comment section. Then I will try to make a video for that. But for the time being, let's discuss about this India Bhutan 10 MOUs vow to strengthen ties. So आपको पता है कि Prime Minister Modi he is there in Bhutan, and as you know कि Bhutan is a really very important country for India from both the perspective of strategic and other aspects also. So perhaps you remember कि प्राइम मिनिस्टर अपने पहले ही टर्म में भूटान गया था विजिट में, and again now he is going to Bhutan. And here in the Hindu, in this article, so various aspects about his visit is highlighted and regarding the MOUs. सो इस बार वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जाके एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इनोग्रेट किया है, मोंगदेचू पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. सो दिस इज टॉकिंग ऑल अबाउट, बट I would like to highlight the other few things that is from the other newspaper, the Indian Express. So यहाँ पे काफ़ी डिटेल में दिया गया है कि 10 MOU साइन किया गया है, रुपए कार्ड लॉन्च किया गया है, और यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है. सो लेट्स हैव ए लुक व्हाट आर द डेवलपमेंट्स. So before that, as I told you, Bhutan is a really very important country. As you know, we are having a not very good relationship with China, and also Bhutan they are quite cooperative. हर एक वर्ल्ड फोरम में इंडिया को सपोर्ट करते आया है, और इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के हिसाब से भूटान बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो यहाँ पे अभी स्पेसिफिकली हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेट मोंगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड ऑल्सो लॉन्च्ड स्टैम्प्स. सो डू रिमेंबर दिस नेम, क्योंकि प्रीलिम्स में वेदर इट इज़ APSC or UPSC they may ask you about this question or try to get some idea about the previous projects. Okay, and here also one very important thing they have mentioned that in India is the largest buyer of Bhutanese hydropower. सो एक्चुअली क्या है कि जो भूटान अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उन लोग जनरेट करते हैं, सो ऑब्वियसली दे नीड सम बायर एंड दे फॉर दैट पर्पस दैट्स हाउ दे विल जनरेट रेवेन्यू. सो ऑब्वियसली इंडिया इज अ लार्जेस्ट बायर, एंड here as you see this they also launched stamps. So these two nations signed 10 memorandum of understanding in various fields like space research, aviation, IT, power and education. So let's have a look यहाँ पे क्या क्या दिया गया है. तो स्पेस रिसर्च में देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक इनोग्रेट किया गया है ग्राउंड अर्थ स्टेशन एंड सेटकॉम
नेटवर्क। सो ये पॉसिबल हुआ है विद द असिस्टेंस ऑफ इसरो। आपको शायद याद होगा कि इसरो ने, इंडिया ने लास्ट आफ्टर सार्क समिट अनाउंस किया था कि देर विल बी वन साउथ एशिया सैटेलाइट। सो राइट नाउ इट इज़ वर्किंग, and they also means there in Bhutan one ground earth station was inaugurated for that purpose. So इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि भूटान को अभी और भी कम्युनिकेशन एंड अदर सेक्टर्स में डेवलप करने के लिए और भी ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। सो दैट इज़ द फैसिलिटी दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय इंडिया, एंड ऑब्वियसली एज यू नो, एज ए neighbor or a country that which always support us, that we need to obviously facilitate them. यहाँ पे क्या क्या मतलब पॉजिटिविटी है वो भी दिया गया है कि कम्युनिकेशन, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल्सो डिजास्टर मैनेजमेंट। एंड अगेन हियर you can see that Modi also launched RuPay card in Bhutan by making a purchase here. Okay, so this is RuPay card was launched, and you perhaps know about the RuPay card. And again, in education sector, here they say that unveiled interconnection between India's National Knowledge Network and Bhutan's Druk Research and Education Network. So this will basically this will facilitate to share knowledge for those who are trying to persuade higher education. Okay, so these are the sectors, and you need to understand, and you can also make a note of these all these things, so that if there will be any question in your mains or in prelims also, so you can remember things. So this is all about this particular article. India Bhutan extends MOU and vows to strengthen ties, and definitely this is very important. एंड एज आई टोल्ड यू कि ये जो 370 रिलेटेड ये जो आर्टिकल्स है ये सब आते ही रहेंगे. सो वन मोर थिंग इज देयर, ट्रम्प आस्क इमरान खान टू रिजॉल्व कश्मीर इशू बायलैटरली. एज यू नो, अभी पाकिस्तान ने with the help of China, they went to United Nations Security Council, and they convinced to have a meeting there. But those things are going on. और यहाँ पे ये बोला गया है कि ट्रम्प ने भी, इनफैक्ट अमेरिका ने भी बोला है कि द इशू शुड बी रिजॉल्व्ड बायलैटरली. सो यहाँ पे बाकी सब जो देश हैं लाइक रशिया एंड यूएसए, दे आर ऑल्सो रोलिंग आउट, दे आर आई मीन उन लोग इससे बाहर हैं. सो दे आर राइट नाउ सेइंग दैट आप काइंडली इसको खुद से बायलैटरली सॉल्व कीजिए. So this is the first page, and in this first page there is nothing so much important. Other few things are there, but these particular article, and as I told you, this thing that is already in development, you just go through all these things. Okay, so let's move to the other pages. Now, here in this seventh page, you will see one article that is panel to review Char Dham Highway. So, as you know, there is a project going on related to चार धाम. तो यहाँ पे आपको कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे कि चार धाम एक्चुअली में है क्या, और ये प्रोजेक्ट क्या के साथ रिलेटेड है. तो एज यू कैन सी हियर दैट हियर यू कैन सी that this is a central project and 900 किलोमीटर प्रोजेक्ट. और चार धाम को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे इंटेंशन ये है कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू इम्प्रूव करेंगे वो जो है रोड नेटवर्क एंड पिलग्रिम्स. ये पिलग्रिम्स साइट्स जो है चार धाम जो हम लोग बोलते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ. सो ये चारों जो चार धाम हम लोग बोलते हैं, इनको कनेक्ट किया जाएगा रोड से. और ये अभी सिंगल लेन रोड है और इसको डेवलप किया जाएगा डबल लेन में. सो हियर यू कैन सी डबल लेन में इनको कन्वर्ट किया जाएगा. और इसके लिए अभी फ़िलहाल एक्चुअली काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन फ्यू NGO
दे हैव सम कंसर्न रिगार्डिंग वेरियस थिंग्स. तो यहाँ पे देखिए आप, एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप लेड बाय देहरादून बेस्ड सिटीजन फॉर ग्रीन दून, दे फाइल पिटिशन इन लास्ट फरवरी. और पिटिशन कहाँ फाइल किया गया, ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है. वी विल हैव ए बिट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. सो हुआ ये था कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, जो कि एक ट्राइब्यूनल बॉडी है, तो उन लोगों ने एक्चुअली क्लियरेंस दे दिया था. लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर पार्शियली इसको रोक दिया. तो अभी फ़िलहाल हुआ यूँ कि इसमें एक नया कमिटी बन रहा है. और ये कमिटी, दैट कमिटी विल बी हेडेड बाय रवि चोपड़ा, डायरेक्टर ऑफ द देहरादून पीपल्स साइंस इंस्टीट्यूट. सो दिस इज़ नॉट वेरी important. So they are constituting high power committee, and this committee will provide their assessment in 4 months. So this is the deadline that is given. सो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको जानने के लिए ये है कि ये जो चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट है ये क्या है. एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आपको बिट ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिला हुआ है. 900 किलोमीटर का 12,000 करोड़ का एम्बिशियस चार धाम प्रोजेक्ट है. और यहाँ पे क्या करेंगे कि ये सिंगल लेन रोड को डबल लेन बनाएंगे. और ये उत्तराखंड में, ताकि एक्सेस ज़्यादा हो सके. और कहाँ कहाँ कौन कौन सा ये कनेक्ट करेगा, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ. नाउ यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए मेरे ख्याल से, वो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. अभी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या है, तो यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट है, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मैंने रखा हुआ है. तो ये 2010 में बना है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010. और इसने रिप्लेस किया है नेशनल एनवायरनमेंट एपेलेट अथॉरिटी को. ठीक है. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केस रिलेटेड टू व्हाट, environmental protection and conservation of forest. Okay. And again giving relief and compensation and other related matters. So ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव. अभी इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो स्ट्रक्चर में इसमें क्या है कि यहाँ पे होंगे एक चेयरपर्सन और कुछ मेंबर्स. और एज ए सेड कि फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे. और मेंबर्स होंगे, मेंबर्स कितने होंगे, 10 से 20 जुडिशियल मेंबर्स और 10 से 20 एक्सपर्ट मेंबर्स. मतलब 10 से 20 तक कुछ भी हो सकता है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20. और दो टाइप के मेंबर्स होंगे, एक एज आई सेड कि जुडिशियल मेंबर्स होंगे और एक होंगे आपका एक्सपर्ट मेंबर. तो यहाँ पे फिर क्वालिफिकेशन भी आप थोड़ा बहुत जान लीजिए कि चेयरपर्सन का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए. पर्सन शुड हैव बीन आइदर ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे दो दो कंडीशन है, जो कि एक है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए और एल्स चीफ जस्टिस होना चाहिए कोई भी हाई कोर्ट का. ठीक है. और क्वालिफिकेशन ऑफ जुडिशियल मेंबर्स, जुडिशियल मेंबर्स का क्वालिफिकेशन क्या होंगे इसमें, आप देखिए, ट्राई टू लुक फॉर द सिमिलरिटीज़. यहाँ पे चेयरमैन का देखिए आप, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है. लेकिन यहाँ पे अगर मेंबर होने के लिए, जुडिशियल मेंबर होने के लिए आपको क्या चाहिए कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट. दैट मीन्स यहाँ पे मेंबर बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज होने से भी होगा और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने से भी चलेगा. और एक है कि अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं तो भी हो सकता है. और एक्सपर्ट मेंबर्स बेसिकली कौन होंगे, जो कि डोमेन एक्सपर्ट्स होंगे. जैसे कि मान लीजिए आपका मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, और जिन लोगों ने 15 ईयर्स रिलेवेंट फील्ड मतलब मान लीजिए कि कोई एनवायरनमेंट फील्ड में काम किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपीरियंस है. ठीक है. और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में सर्व किया हुआ है.
और ये नॉर्मली होता ये है कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स मींस उन लोग अपना जो ऑब्वियसली यहाँ पे उन लोग सर्व करके आएंगे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को, तो आफ्टर दैट दे विल be appointed here as a chairman or member. So this is a bit of background information regarding this National Green Tribunal. So यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये पैनल टू रिव्यू चार धाम हाईवे। सो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको ये प्रोजेक्ट के बारे में जानना, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया ब्रीफली कि क्या है ये प्रोजेक्ट, और एक चीज़ ये है कि हम लोगों ने एट द सेम टाइम ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है उसके बारे में भी थोड़े बहुत चीज़ यहाँ पे जानने की कोशिश की है। और यहाँ पे इस पेज में मुझे नहीं लगता कि और भी कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन आप फ़िलहाल फिर भी आप इफ़ यू वांट देन आप ये सब ऐसे ही एक देख सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर पेजेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए फॉरेन जो पेज है, यहाँ पे वर्ल्ड के बारे में जो डेवलपमेंट्स है यहाँ पे वो देते रहते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी टाइम से चल रहा है, वो है ईरान और यूएसए का टेंशन। कभी ये अपना ऑयल टैंकर सीज कर लेता है, ईरान कर लेता है यूके का, कभी दूसरा कोई कर लेता है। तो दिस इज़ क्वाइट बिट गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम। सो आप अगर चाहते हो कि मैं इसमें डिटेल्स वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, मैं डिटेल में आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बोलूँगा कि आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है दिस इन दिस सेक्शन की सूडान में जो हाल ही में वो हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ था। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टाइमलाइन दिया गया है एक्चुअली में हुआ क्या था। तो मैं आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देता हूँ ताकि व्हेन यू गो थ्रू दिस टाइमलाइन आपको समझ में आए। तो वहाँ पे एक्चुअली जो पब्लिक है उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि अगेंस्ट द लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट उमर अल बशीर, कि वो प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए और जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक का होना चाहिए। सो उन लोगों ने जाके, जो वहाँ का पब्लिक है उन लोग जाके काफ़ी टाइम प्रोटेस्ट किया है इन फ्रंट ऑफ आउटसाइड ऑफ द आर्मी हेडक्वार्टर इन खार्तूम। खार्तूम इज़ द कैपिटल। और फाइनली जो उमर अल बशीर है तो उनको वहाँ से रिमूव किया गया अपने पोजीशन से, और द मिलिट्री काउंसिल डे टुक ओवर। और इनिशियली उन लोगों ने बोला था कि विद इन 2 years दे विल टेक 2 years टाइम, एंड आफ्टर दैट दे विल बी ट्रांसफ़र द पावर टू ए गवर्नमेंट। सो लेकिन जो सूडान के जो लोग थे उन लोग इमीडिएटली चाहते थे कि पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास आए। गवर्नमेंट दैट मीन्स विच विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल। सो उसके बाद भी एक्चुअली ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा। काफ़ी टाइम यहाँ पे टाइम टाइम मतलब आपका जो टाइमलाइन दिया गया है। और रिसेंटली अभी हुआ ये कि वहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट था एक अब्दुल्ला हमडोक, तो वो नॉमिनेट किया गया है एज ए प्राइम मिनिस्टर। और जो कि अभी फ्यूचर जो ट्रांजिशन ऑफ गवर्नमेंट होगा, जो मिलिट्री के हाथ से जो लोगों के हाथ में जो गवर्नमेंट आएंगे, सो वो ट्रांजिशन होने वाला है। सो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये डिटेल में आपको अगर जानना है तो लेट मी नो। मैं इसमें एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने के लिए भी कोशिश करूँगा। लेकिन ये काफ़ी डिटेल में दिया गया है, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा ये जो आर्टिकल है। सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और यहाँ पे इस पेज में और एक चीज़ हाईलाइट किया गया है, ये जो है हांगकांग में जो चल रहा है, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर डेमोक्रेसी, तो वो भी एक इशू चल रहा है। और यूएस प्रेसिडेंट, ये जो यूएस का तालिबान के साथ जो बातचीत चल रहा है उसका भी आगे बढ़ रहा है। सो ये भी आप लोगों को आप लोग जस्ट फॉलो कीजिए अभी। आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दिस काइंड ऑफ थिंग्स सो दैट you will have a detail background, and also you will be able to follow all these things. So let's now move on to the other page. सो यहाँ पे और एक पेज है जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि व्हाई इज़ द ऑटो इंडस्ट्री फेसिंग ट्रबल।
शायद आपको, अगर आप इकोनॉमिक्स का भी न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, तो शायद आपको पता होगा कि अभी काफ़ी डिस्कस किया जाता है कि हम लोग का जो इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो वो उसका सेल्स डिक्लाइन कर रहा है। सो एग्जैक्टली आई डोंट थिंक सो ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपको डायरेक्टली पूछेंगे, लेकिन जो कि हम लोगों को पढ़ना है regarding this Indian economy or its various sectors. सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और अभी टेम्पोरेली काफ़ी इसमें सेल्स का डिक्लाइन हुआ है, और बहुत सारे डेवलपमेंट्स भी आ रहे हैं, गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं, ई व्हीकल में काफ़ी कंसंट्रेट कर रहे हैं, जीएसटी में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, फिर वेरियस टेक्नोलॉजीज लाइक बैटरी एंड अदर थिंग्स रिलेटेड टू ई व्हीकल। फिर जो एमिशन स्टैंडर्ड्स है, भारत स्टेज 6, जो कि रोल आउट होने वाला है अप्रैल 1 टू 2020 से। इस आर्टिकल में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। पहले तो यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि ये सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का डाटा दे के बोला है कि कैसे डिक्लाइन हुआ है। और यहाँ पे एक दिया है कि व्हाट हैज़ हैपेंड टू द ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो यहाँ पे पिछले कुछ जीएसटी रोल आउट करने के बाद जो सेल्स बढ़ा था, जीएसटी बेनिफिट को जो एक्सटेंड करने के लिए लोगों ने भी काफ़ी ख़रीदारी किया था, तो ये सब चीज़ें दिया है। और व्हाई डिड इन्वेंट्री पाइल अप। ये ऑब्वियसली बिक्री अगर नहीं हो रहा है, अगर सेल्स नहीं हो रहा है, तो इन्वेंट्री मतलब जो अभी डीलर्स में जो पुराने गाड़ियाँ हो रहा है, पाइल अप हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दो चार रीज़न दिया गया है कि क्यों ये जो डिक्लाइन है वो हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ कुछ रीज़न है कि एक तो है फ्यूल प्राइस का बात किया गया है, इंक्रीज फ्यूल प्राइस। फिर हायर इंटरेस्ट रेट्स का बात किया गया है, और व्हीकल इंश्योरेंस कॉस्ट का भी बात किया गया है। तो इसी के चलते क्या हुआ कि अभी जो एक दो फेस्टिवल सीजन गया उसमें भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो कि नॉर्मली होता है, सेल्स बूस्ट होता है, वो हुआ नहीं। और एक चीज़ ये है कि जो अभी आईएलएफएस का क्राइसिस है, जो जिसके चलते ड्राइंग अप ऑफ क्रेडिट ऑफ डीलर्स एंड कस्टमर्स, मतलब ये आईएलएफएस क्राइसिस है, तो उसके चलते क्या लिक्विडिटी क्रंच हुआ। तो उसके चलते क्या हुआ कि जो डीलर है और कस्टमर है, उन लोग भी नॉर्मली क्या हो रहा है कि लोन अवेल नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे और एक अच्छा चीज़ मतलब इंफॉर्मेटिव चीज़ दिया है कि एक्चुअली में जो रूरल एरिया में जो सेल है, और उसका ग्रोथ हायर है कंपेयर टू अर्बन मार्केट्स। और वहाँ पे कौन प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम एनबीएफसी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है, वहाँ पे रूरल एरिया में उन लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। तो दो चार मतलब चीज़ें हैं यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। एंड यहाँ पे और एक चीज़ है कि आर पीपल होल्डिंग ऑफ ऑन परचेस, मतलब लोग क्या वेट कर रहे हैं, मतलब अभी नहीं खरीद रहे हैं, तो क्या उन लोग मतलब परचेस करने के लिए हेजिटेशन है, उन लोग क्या सोच रहे हैं कि बाद में खरीदेंगे, और अगर ऐसा है तो क्यों है। तो यहाँ पे आप देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि जो हम लोग का भारत स्टेज जो एमिशन नॉर्म्स है, उसका जो कंप्लाइंस जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, और उसके हिसाब से व्हीकल रोल आउट होंगे ये अप्रैल 2020 से। सो ये जो BS6 है, तो उसके चलते लोग सोच रहे हैं कि एक ही बार, अभी 19 है तो 20 तो नेक्स्ट ईयर ही आ रहे हैं, तो काफ़ी लोग शायद सोच रहे हैं कि एक बार ये BS6 आने दो तभी खरीद लेंगे, तो शायद दैट्स वाई दे आर होल्डिंग द परचेज। एंड ऑल्सो यू कैन सी दैट गवर्नमेंट अभी टू मच फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी अभी आपको पता है कि बहुत ही, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनवायरनमेंट के हिसाब से, और हम लोग सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से। तो गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में। तो लेकिन उसमें ज़्यादा फोकस हो जाने से क्या होगा कि अभी जो मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, तो वो सब जो स्टॉक बन रहा है वो सब कहाँ से आउट करेंगे। तो शायद लोग सोच रहे हैं कि एक बार आ जाने दो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल देख लेंगे, उसी को ले लेंगे, अभी इसको लेके क्यों फंसना है। तो मतलब वो सब कुछ कुछ रीजन की वजह से
लोग शायद अपना जो परचेज है उसको फॉर द टाइम बिंग होल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ स्टेटिस्टिक्स दिया गया है कि कितने जॉब्स एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एक डाटा दिया गया है कि अबाउट 37 मिलियन people are directly or indirectly employed in this industry, that means automobile industry, and definitely अगर 37 लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है और यहाँ पे अगर डिक्लाइन हो रहा है तो दिस इज़ क्वाइट अलार्मिंग, बिकॉज उसके चलते जॉब लॉस हो रहे हैं, काफ़ी डीलरशिप बंद हो रहे हैं, तो काफ़ी लोग अपने जो जॉब है उसको खोने वाले हैं। इनफैक्ट ये हो रहा है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कुछ कुछ यहाँ पे दिया गया है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे और एक है कि अभी इसको जो प्रॉब्लम जो चल रहा है इसको ठीक करने के लिए ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या चाहते क्या हैं इन लोग। मतलब उन लोग अभी हाल ही में कई बार गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात हुआ है, तो उन लोगों का दो तीन पॉइंट है जहाँ पे उन लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट इमीडिएटली कुछ करे, इंटरवेंशन करे। जैसे कि उसमें से एक है कि आपका जीएसटी, उन लोग बोल रहे हैं कि जीएसटी 28% से 18% को रिडक्शन करना चाहिए, 18% कर देना चाहिए। जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दिया है pointing out that industry's turnover is close to half of the manufacturing GDP, accounting for 11% of the entire GST revenue of the country. The auto sector is hoping that government will come out with a revival package. तो उन लोग चाहते हैं कि अभी फेस्टिव सीजन भी आ रहे हैं, तो उसके पहले ही गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैकेज के साथ उन लोगों के पास आए, ताकि इन लोग काफ़ी इसमें जो प्रॉब्लम अभी आ रहा है इसमें कुछ रिलीफ मिले इन लोगों को। और यहाँ पे ये एज आई टोल्ड यू कि बहुत ही अच्छा एक डाटा दिया गया है कि जो इंडस्ट्री का टर्नओवर है वो आधा के करीब है टोटल मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का। सो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली, क्योंकि अगर जीडीपी का आधा से ज़्यादा ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही आ रहा है, दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का, तो इसको सरवाइव करना एक सस्टेनेबिलिटी के साथ बहुत ज़रूरी है। तो ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। तो एज आई टोल्ड यू, और यहाँ पे और एक आर्टिकल है, व्हाट इज़ द यूएन स्टैंड ऑन कश्मीर। तो शायद आप लोग अगर न्यूज़ पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग देखेंगे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ एक्चुअली। इसमें एक अलग सा मेरे ख्याल से डिस्कशन चाहिए होगा, बट एनीवे आप लोग यू जस्ट गो थ्रू दिस आर्टिकल, you will learn a lot. So friends, these are the things that are important for today's Hindu newspaper. And as I told you, you really don't need to waste so much time by following all those useless means I would not say useless, but आपका अगर एग्ज़ाम में कोई काम में नहीं आ रहा है तो ऑब्वियसली वो यूजलेस ही है। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि डेली वाइज आपको एनालिसिस अपडेट करने के लिए along with some बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। और आप एक काम कर सकते हैं कि कोई भी हम लोग अगर आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें अगर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हाईलाइट करने के लिए पॉइंट्स, तो आप एक नोट्स बना के रख सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, ताकि you don't need to really have to put or invest your time, a lot of time for all these things. So finally, stay tuned. I will try to make videos of all these daily news analysis. तो कोशिश वही रहेगी। और आप लोग प्लीज़ हम लोग का चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट रहिए डेली न्यूज़ एनालिसिस के साथ। So that's all for today. Thank you so much.